Hello students. So now these are the compounds of sulfur. The first one is SO2, means sulfur dioxide. So starting with the methods of preparations. Sulfur having formula S8 is reacted with oxygen. Then it formed directly SO2, sulfur dioxide. Secondly, if sodium sulfite Na2SO3 is treated with H2SO4, then it forms Na2SO4, SO2 and H2O. It can be written as SO3 2 negative plus H positive forms SO2 plus H2O. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो इंडस्ट्रीज में FeS2 को टेक करवाते हैं ऑक्सीजन से, फॉर्मिंग द ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3 and that of sulfur SO2. And also copper when treated with H2SO4 on heating strongly it forms CuSO4 plus SO2 and 2H2. Physical properties. Sulfur dioxide is colorless and pungent smelling gas, and it is highly soluble in water, which can be seen in chemical properties. First one, acidic character. SO2 dissolved in H2O to form H2SO3, which gives 2H positive and 1 SO3 2 negative ion. Further, second, acidic gas है, so base से reaction करेगा NaOH से and it will form salt Na2SO3 and water H2O. And Na2SO3 means this one, if further treated with H2 and SO2 forms NaHSO3 which is sodium bisulfite. ये था सोडियम सल्फाइट. React with chlorine gas to form sulfonyl chloride SO2Cl2. Reacts with oxygen gas in presence of V2O5 to form sulfur trioxide. Next is reducing property. Sulfur dioxide जो है, it is a very good reducing agent in presence of water, means aqueous medium, because in aqueous medium sulfur dioxide reacts with water and takes up oxygen from oxidizing agents and forms H2SO4. And also it gives hydrogen by reacting with H2O and forms H2SO4 plus 2H. So it can accept oxygen as well as it can donate hydrogen. In both cases it acts as reducing agent. So there are some examples like ferric sulfate Fe2SO3 treated with SO2 in presence of H2O, then it forms FeSO4 and H2SO4. तो जिसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है और आयरन का डिक्रीज़ हो गया है. So this is a reducing agent. Reacts with KMnO4 in presence of H2O and forms K2SO4 plus H2SO4 and MnSO4. In this reaction, purple color of KMnO4 जो होता है becomes discharged or colorless because MnSO4 is colorless, and these are already having no color. So it is a chemical test also for sulfur dioxide. मीन्स अगर सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन में से हम KMnO4 का पर्पल सॉल्यूशन पास करेंगे, उस सॉल्यूशन में से गैस को पास करेंगे तो भी उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा. क्लोरीन रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्वस मीडियम and here it forms HCl and H2SO4. सो इन सभी रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है या फिर हाइड्रोजन डोनेट. फॉर एग्जांपल PbO2 plus SO2 PbSO4.
Na2O2 plus SO2 Na2SO4। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो हैविंग दिस स्ट्रक्चर, जिसमें सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है और एक इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट हो जाता है P से। हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और एक है लोन पेयर, दो हैं बॉन्ड पेयर लाइक दिस। एक बॉन्ड है p पाई d पाई और एक d की वजह से है p पाई d पाई विद p ऑफ ऑक्सीजन, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम इन बोथ द बॉन्ड्स, d पाई से p पाई और p पाई से d पाई p पाई, एंड दिस इज बेंट और V शेप। Sulfur dioxide is used for bleaching because oxidizing and reducing agents are very good bleaching agents also। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बट जो ज़्यादा डैमेज ना करें, जैसे ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। सो दीज केमिकल्स आर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वेजिटेबल्स, क्लॉथ्स एट्सेट्रा। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स और पेस्ट को किल कर सकता है। एंड आल्सो यूज टू मेक सोडियम बाइसल्फाइड H2SO4, सोडियम थायोनाइल और सोडियम थायोसल्फेट, एंड आल्सो यूज्ड एज solvent like water in liquid state। So next one is H2SO4 sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड को मोस्टली प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें इंडस्ट्री के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सल्फर एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के SO2 में कन्वर्ट किया जाता है और SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं एट दीज कंडीशंस V2O5 कैटालिस्ट 2 atm प्रेशर एंड 720 केल्विन टेम्परेचर, और इसमें हीट रिलीज होती है विद फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा जब हाई प्रेशर हो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड स्टेप में लेस हैं और बैकवर्ड में ज़्यादा हैं। सो हाई प्रेशर पर लो की मॉलिक्यूल्स की तरफ शिफ्ट होता है। एंड लो टेम्परेचर, बिकॉज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर शुड बी लो, मीन्स नॉट वेरी हाई, बट टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई रखते हैं क्योंकि रिएक्शन की जो स्पीड है उसको भी मेंटेन करना है। लो टेम्परेचर पर स्पीड स्लो हो जाती है। देन SO3 इज ट्रीटेड विद प्योर H2SO4 टू फॉर्म H2S2O7, जिसको बोलते हैं ओलियम और परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। और ओलियम की रिएक्शन फिर वाटर से करवाते हैं, देन इट फॉर्म्स 2 मीन्स डबल H2SO4। तो 1 H2SO4 SO3 और H2O को मिक्स करने में हेल्प करता है, बिकॉज अगर हम ये कैंसिल कर दें तो रिएक्शन होगी SO3 प्लस H2O और 1 H2SO4 फॉर्म्स 2 H2SO4। Then comes the physical properties of sulfuric acid. It is colorless, dense, oily liquid, and it is highly soluble in water and highly exothermic dissolution process होता है H2SO4 का। तो सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे एसिडिक करेक्टर H2SO4 when dissolved in water gives H positive ion and hydrogen sulfate। then HSO4 gives further one more positive ion and sulfate। इसमें ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1, ये है Ka2, तो K2 इज़ वेरी स्मॉल देन Ka1। प्योर H2SO4 में फर्स्ट H पॉजिटिव आसानी से रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा, बट सेकंड H को वो बहुत ही लेस रिलीज़ करता है। बट एक्वस मीडियम में हमेशा कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर सल्फेट की ही फॉर्मेशन करेगा। HSO4 has less tendency to give H positive in pure state। H2SO4 एसिड है, बेस से रिएक्शन करके सोल्ट Na2SO4 और H2O या COH2 से रिएक्शन करता है तो CSO4 सोल्ट प्लस H2O and heat will be released। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
रिएक्शन विद मेटल्स, H2SO4 मेटल्स को मेटल सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ZnSO4 फ्रॉम Zn एंड MgSO4 फ्रॉम Mg, और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 विद सॉल्ट्स, काफ़ी सारे सॉल्ट से रिएक्शन करता है और ये एसिड है, इसलिए बेसिक सॉल्ट से रिएक्शन करेगा, या फिर वो सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से फॉर्मेशन हो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। सो कंपेरेटिवली H को डिस्प्लेस करता है मेटल आयन जो मोर रिएक्टिव है। सो इन दिस CaSO4 प्लस HCl, यहाँ पर सोडियम डिस्प्लेस करेगा Na2SO4 प्लस HF, इसमें सोडियम डिस्प्लेस करेगा Na2SO4 प्लस HNO3, और यहाँ सोडियम डिस्प्लेस करके Na2SO4 और उधर से H2S की फॉर्मेशन कर देगा। एंड H2SO4 इज़ ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मीन्स ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में या रिलीज़ करने में किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हेल्प करता है। लाइक अगर हम शुगर को H2SO4 मिला दें Ac12H2211, तो इट फॉर्म्स कार्बन और सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का H2O बन जाता है। इथेनॉल में ऐड कर दें H2SO4, तो इसमें से H2 रिलीज होकर बनता है इथिन, जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। So H2SO4 इज़ वेरी गुड एजेंट टू absorb water or to remove water from compounds. So this is a very good dehydrating agent. Then comes oxidizing property. Like ozone, like HNO3, this is also in hot concentrated state acts as very good oxidizing agent, because H2SO4 hot और concentrated ये रिएक्शन करता है H2O, SO2 एंड ऑक्सीजन, ये है नेसेंट ऑक्सीजन, जिससे ये करता है अदर सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन, एंड इट कैन ऑक्सीडाइज वेरियस मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड वेरियस कंपाउंड्स। सो इफ यू टॉक अबाउट सम मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर, तो H2SO4 उनके corresponding सल्फेट्स की फॉर्मेशन करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, and with copper it forms CuSO4, SO2 and H2O. लेस रिएक्टिव मेटल्स में SO2 रिलीज करेगा और मोर रिएक्टिव में हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर या कार्बन, तो सल्फर का हो जाएगा SO2 और साथ में रिलीज होगा H2O बाय दिस रिएक्शन, और इसी ऑक्सीजन से कार्बन की फॉर्मेशन में करेगा CO2 में, और रिलीज होंगे एक्स्ट्रा SO2 एंड H2O। तो मोस्टली SO2 और H2 रिलीज करेगा विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, कैल्शियम, तो उनमें सल्फेट्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड दीज आर सम अदर रिएक्शंस ऑफ H2SO4 लाइक KClO3, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट फॉर्म्स KHSO4, HClO4, ClO2 एंड H2। रिएक्शन विद PCl5, तो PCl5 में फॉस्फोरस का POCl3 और सल्फर का SO2Cl2 प्लस HCl, एंड रिएक्ट विद K4FeCN6 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स K2SO4 फ्रॉम पोटेशियम, FeSO4 फ्रॉम आयरन, NH4,2SO4 फ्रॉम Cn and sulfate, and CO from its carbon. Uses: H2SO4 used to make HCl, H3PO3, HNO3, तो इस तरह के केमिकल्स ये ऑक्सीडाइज करके कुछ सब्सटेंसेस को ये रिड्यूस करके भी हम बना सकते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड से। सो सल्फ़र डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके अलावा इस चैप्टर में सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। बैटरीज में यूज़ करते हैं H2SO4 को, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसके डिफरेंट यूजेस हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स।
Now comes the next topic, and this is oxo acids of sulfur. सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलकर एसिड्स की फॉर्मेशन करता है लाइक H2SO4, तो इन एसिड्स को कहा जाता है ऑक्सो एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl जो है एसिड है, बट दिस इज़ नॉर्मल एसिड, नॉट ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड्स वो हैं जिन एसिड्स में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और वो H+ आयन भी दे सकते हैं। So sulfur forms a large number of oxo acids like H2SO4, but most of them are unstable. But जो स्टेबल ऑक्सो एसिड्स हैं उनके में से कुछ इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं हमारे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड +6। H2SO5 इसको बोलते हैं पर ऑक्सो। सो इन सभी के नाम सल्फ्यूरिक एसिड से स्टार्ट होते हैं। सल्फ्यूरिक में से ऑक्सीजन कम हो गया तो बोल दिया सल्फ्यूरस, ऑक्सीजन एक ज़्यादा हो गया तो बोल दिया पर ऑक्सो, और साथ में सेम नेम। H2SO3 सल्फ़र आ गया ऑक्सीजन के प्लेस पर तो थायो शब्द यूज़ करते हैं, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें एक सल्फ़र +6 और एक -2 स्टेट में है। H2S2O7 दो H2SO4 के मॉलिक्यूल अगर मिल जाएं और उसमें से H2O निकल जाए तो बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सभी सल्फ़र का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और दो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर H2 निकले और H2O ना जाए, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा हो गया H2S2O7 में, तो उसके लिए फिर से पर ऑक्सो एंड डाइसल्फ्यूरिक एसिड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड H2S2O6 H2O निकल के एक और ऑक्सीजन कम हो जाए तो इसको बोलते हैं डाईथायोनिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। H2SO5 को कारो एसिड भी बोलते हैं, H2S2O7 को ओलियम और H2S2O8 को मार्शल एसिड। तो इन एसिड्स के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है H2SO4, जिसमें सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि 2 बॉन्ड पाई हैं और 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रली सिग्मा है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दीज आर OH। और अगर इसी मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन के प्लेस पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे और वहाँ पर लोन पेयर आ जाए, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप, तो ये है H2SO3। और H2SO4 में एक और ऑक्सीजन OH और सल्फ़र के बीच में आ जाए तो ये है H2SO5। और ऑक्सीजन के प्लेस पर सल्फ़र आ गया है तो ये है H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और ये है दो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स के 2 OH यहाँ पर कंडेंस हो गए और उसमें से निकल गया H2O और बीच में आ गया O, तो ये है ओलियम H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और बीच में अगर 2 ऑक्सीजन आ जाएं मीन्स पायरोसल्फ्यूरिक में एक और, तो ये H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और दोनों ही ऑक्सीजन निकल जाएं, सल्फ़र से सल्फ़र कनेक्ट हो जाए, बाकी स्ट्रक्चर सेम H2SO4 दो, तो H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड। Each sulfur is attached to 4 atoms tetrahedrally and its hybridization is always sp3 in every acid. बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H+ आयन। वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ OH, तो वो सारे H डिस्प्लेस हो सकते हैं और उसी नंबर को बोलते हैं हम बेसिसिटी। सो यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स में H हमेशा ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑल हाइड्रोजन्स आर डिस्प्लेसेबल। तो जिसमें जितने हाइड्रोजन हैं फार्मूले में वो उतने ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। एंड सभी में 2 हाइड्रोजन्स हैं, सो ऑल आर डाई बेसिक एंड एवरी एसिड गिव्स 2 H+ आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। So now comes the last topic about sulfur,
and this group the allotropes of sulfur. So allotropes are the compounds, and these are the phenomena of finding a substance or element in more than one physical states. तो सल्फर की एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स में है रोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल या अल्फा सल्फर भी बोलते हैं हम इसको। इस सल्फर में क्राउन की शेप में 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्राउन मतलब जैसे एक ताज होता है सर पे, और इस तरह के एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम्स एक दूसरे से पैरेलल अटैच्ड हैं विद वान डर वाल फोर्सेस। डार्क येलो कलर का ये सब्सटेंस है और वाटर में हाईली इनसॉल्युबल है बिकॉज नॉन पोलर है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CS2 बेंजीन अल्कोहल। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, जिसमें अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर हैं, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो इसके पैरेलल रखा हुआ है इस तरह से। एंड इट इज़ मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड इज मोनोक्लिनिक और ऑल्सो कॉल्ड बीटा सल्फर। ये डल येलो कलर का होता है, वाटर में इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट इसमें S8 की जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल रखी हैं, बॉन्ड्स वीक हैं और ये लेस स्टेबल है इन दिस मैनर। एंड ये हमें मिलता है जब अल्फ़ा सल्फ़र को 369 केल्विन पर हीट कर दें तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं जो पैरेलल थे, एंड दे बिकम्स एंटी पैरेलल, सो it changes to alpha sulfur below this temperature. So it is stable only at temperature above 369 Kelvin. उससे नीचे ये फिर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा एलोट्रोप है सल्फर का साइक्लो S6 या एप्सिलिन सल्फर या एंजल्स सल्फर। इसके अंदर 6 सल्फ़र के एटम्स होते हैं और वो एक चेयर की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह से हमारा एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ चेयर। लास्ट इज S2 सल्फ़र। अगर 1000 केल्विन से ऊपर हम किसी भी सल्फ़र को 1 2 या 3 जो फर्स्ट हीट कर दें तो वो S2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं जो O2 ऑक्सीजन की तरह होते हैं विद S डबल बॉन्ड S, एंड पैरामैग्नेटिक भी होते हैं ऑक्सीजन की तरह due to presence of 2 unpaired electrons in pi star antibonding molecular orbital. So now in this way group 16 is complete, and this is the anomalous behavior of oxygen. Oxygen do not form tetra and hexahalides due to absence of d orbitals. पढ़ चुके हैं हम इसको। ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड वैलेंसी बियॉन्ड 4। 4 से ज़्यादा बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वैलेंशियल में एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है विद इटसेल्फ और अदर्स, और इसीलिए ये O2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लाइक N2, बट अदर्स जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, पाई बॉन्डिंग नहीं करते और वो सिंगल बॉन्ड इंडिविजुअली 3 डायमेंशनली फॉर्म करते हैं लाइक सल्फर, सो दे आर सॉलिड ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। बट ऑक्सीजन का नेटवर्क 2 ही एटम के बीच में फिनिश हो गया ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, सो दिस इज गैस। ऑल्सो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकेज इज वेरी लेस इन ऑक्सीजन, बट इट इज फाउंड टू बी वेरी हाई इन सल्फर बिकॉज ऑक्सीजन पाई बॉन्डिंग की वजह से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, तो इसको अदर चेन्स बनाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। बट सल्फर कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ड्यू टू अनएबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्डिंग। सो अदर एलिमेंट फॉर्म्स पी पाई एज वेल एज डी पाई बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन फॉर्म करता है सिर्फ पी पाई बिकॉज इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है वैलेंशियल में।
तो इसी के साथ हमारा ग्रुप 16 कंप्लीट है। नेक्स्ट होगा ग्रुप 17 विच इज़ फ्लोरीन फैमिली ऑल्सो कॉल्ड हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन. So this will be done in next lecture. Thank you.